Good morning, students. Today we are going to read this chapter titled Lost Spring. So, this Lost Spring is the second chapter in your Flamingo book, right? This chapter has been written by Anis Jung, right? And so, about her, she was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. शी वाज बॉर्न इन राउरकेला राउरकेला में उनका जन्म हुआ और हैदराबाद में उनका किशोरावस्था बीता. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आफ्टर दैट शी गॉट हर एजुकेशन इन हैदराबाद and then she went to study to United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. So, about this, one important point is here that this story, Lost Spring, has been taken from her collection of stories of stolen childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemned the children to a life of exploitation. तो अब तक जो हम लोग पढ़े इसका मतलब ये है कि गरीबी के विषय में, गरीबी की हालत, गरीबी में व्यक्ति की क्या हालत होती है, क्या स्थितियाँ होती हैं कि इंसान के लाइफ में पॉवर्टी, इसके पॉवर्टी का क्या इफ़ेक्ट है, इसके ऊपर ये स्टोरी है. क्लियर? मतलब दिस स्टोरी इज बेस्ड अपॉन द हार्ड रियलिटीज ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, तो ये वंशानुगत जो गरीबी का दंश झेलने वाली पीढ़ियाँ हमारे यहाँ हैं उनके विषय में ये कविता है, एक कहानी है. तो हम लोग इसको अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स, अंडरस्टैंड दैट आई एम a teacher in CBSE course school. I am a trained teacher. My name is Lalan Thakur. I am MA in English Language and Literature. I have qualified CTET exam, and so I have got a long experience of teaching in CBSE affiliated schools. That's why I am here able to share my experiences of teaching with you. So if you subscribe my channel, then each and every information about my performance, about my videos, you will get on time. So I request you to subscribe and share and like. अगर आपको पसंद आता हो मेरा ये वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर चीज़ समय पर मिल सके. I hope that you will subscribe it. So this NCERT book I am going to start today, Lost Spring, chapter number 2. That story has been taken from Stories of Stolen Childhood, and the story is based upon the theme of grinding poverty and traditions. What is the theme of the story? The theme of the story is grinding poverty and traditions which condemned these children to a life of exploitation. Exploitation means शोषण. गरीबी के कारण, गरीबी की चक्की में पिसते रहने के कारण बच्चों की ज़िंदगी किस तरह से शोषित हो जा रही है, तबाह हो जा रही है, एक्सप्लॉइट हो जाती है, उसके विषय में एक कहानी है. ठीक है, तो नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट में ये जो दिया हुआ है नीचे, जैसे लुकिंग फॉर, स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, रूफ ओवर हिज हेड, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, डार्क हटमेंट्स, इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड. ये आपको जहाँ ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वहाँ ये इम्पोर्टेंट फ्रेज आपको मिलेंगे. सो वी विल हाईलाइट दिज whenever we will find these words in the sentences. लुकिंग फॉर मतलब देखना, मतलब होप करना. लुकिंग फॉर, सर्च फॉर. स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, अपना दिन गुजारना,
अपना कीमती वक्त बर्बाद करना। रूफ ओवर हिज हेड, एक छत मिलना, नसीब होना छत। परपेचुअल मतलब शाश्वत, परमानेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की अस्थायी स्थिति। डार्क हटमेंट्स, बिना लाइट के जो झोपड़ियाँ होती हैं उसके विषय में स्लम। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, ये बैगेज का बोझ बच्चे के ऊपर डाल दिया गया। बचपनावस्था में, बाल्यावस्था में, इन चाइल्डहुड, इफ ए चाइल्ड हैज़ टू वर्क देन इट इज कॉल्ड दैट द लोड ऑफ द बैगेज हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द चाइल्ड। ठीक है, तो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइन बाई लाइन। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। In this line, in this paragraph, we will see that this line is the most important one because it has been highlighted. Sometimes I find a rupee in the garbage. Garbage मतलब कचरे का ढेर जो होता है, जो कचरा कहते हैं उसको गार्बेज, उसमें से कभी कभी कहने वाले व्यक्ति को 1 रुपया मिल जाता था। Why do I do this? I ask साहेब। Why do you do this? Writer, narrator asked साहेब। साहेब से पूछा लेखक ने कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये गार्बेज क्लीनिंग का काम क्यों करता है। व्हाई डू यू सर्च, व्हाट डू यू सर्च इन दिस गार्बेज, व्हाई डू यू डू दिस। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में मैं उस बच्चे को देखता था जिसका नाम साहेब था। वो वहाँ पर गार्बेज में से, कचरे में से कुछ खोजता रहता था। तो वो बच्चा पूछने पर बोलता था कि ही वॉज सर्चिंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, सर्चिंग फॉर गोल्ड, वह सोना खोज रहा है, उसमें से सिक्का खोज रहा है, पैसा खोज रहा है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब बहुत पहले अपना घर छोड़ करके शहर में आ गया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका में उसका घर था पहले। ढाका कहाँ है, तो कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। हिज नेम इज, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। There were many storms that swept away their fields and homes। वहाँ पर स्टॉर्म आया बहुत मात्रा में, पावरफुल स्टॉर्म came and that swept away the fields and homes of that boy whose name is here साहेब। His mother tells him, उसकी माँ ये कहानी बोली, that's why they left looking for gold in the big city where he now lives। और इस प्रकार से देहात छोड़ करके, गांव छोड़ करके वे लोग शहर में आ गए और शहर में गरीब का जीवन जीने को अभिशप्त हो गए। अब कचरा का कारोबार करते हैं लोग, कचरे में से छोटे बच्चे हैं वो कुछ खोजते रहते हैं, कुछ 1 आध रुपया मिल जाए, कुछ सिक्का मिल जाए, कुछ वैल्यूएबल थिंग मिल जाए। तो इसलिए जो गरीब के बच्चे होते हैं वो कचरे में अपना कुछ खोजते हैं, जिसमें से कभी कभार उनको कुछ मिल भी जाता है। ये कहानी है। तो आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, वो बोला कि करने के लिए कुछ नहीं है। लुकिंग अवे गो टू स्कूल, मैंने पूछा कि स्कूल नहीं जाते। आई से ग्लीबली रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ये हॉलो मतलब खाली, ये जो सलाह मैंने दिया कि स्कूल नहीं जाते, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, तो वो मैं समझा कि ये मेरा कहने का अर्थ है, जो मैंने कहा इसको गो टू स्कूल एकदम मीनिंगलेस रहा, ये हॉलो रहा। हॉलो मतलब जब किसी को रियल बात बताइए, फैक्चुअल मैटर शेयर कीजिए, ऐसा कहिए जो संभव हो उस व्यक्ति के लिए, तो उसको बोलते हैं कि वो रियल हुआ। लेकिन ये तो हॉलो है, जो होने वाला नहीं है। उस गरीब से, उस गरीब के बच्चे से जिसको भोजन में नहीं मिल रहा है, जो सुबह से शाम तक काम करता है, उसको स्कूल जाने की बात किए। तो स्कूलिंग आज के ज़माने में क्या है, तो आज के ज़माने में स्कूलिंग तो गरीब आदमी के लिए, जिसको खाने के लिए नहीं है, उसके लिए असंभव ही है। अब मान लीजिए सरकार जो है सुई मिड डे मील वगैरह चलाती है, तभी बच्चे का सारा खर्च तो नहीं उठाती। स्टिल टुडे देयर आर मेनी चिल्ड्रेन इन आवर कंट्री हु हैव टू अर्न देयर लाइवलीहुड, जिनको दोनों शाम के खाने के लिए मेहनत करना है, रोटी कमाना पड़ता है, तो उसके लिए गो टू स्कूल का कोई मीनिंग नहीं है। सो दिस सेंटेंस इज हॉलो, दिस एडवाइस इज हॉलो। देन नेक्स्ट इज देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। जब मैंने उससे पूछा कि स्कूल जाते हो, स्कूल जाओ, वो बोला कि मेरे पड़ोस में स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो,
वो बोला कि जब स्कूल बन जाएगा देन आई विल गो टू स्कूल। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। मैंने उससे पूछा, लेखिका ने उससे पूछा कि अगर इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। आई आस्क हाफ जोकिंग। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। वो बोला कि यस आई विल कम। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। इज योर स्कूल रेडी? वो आकर के पूछा कि आपका स्कूल रेडी हो गया मैम? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। ऐसे मैंने बोला कि स्कूल बनाने में टाइम लगता है बेटा। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। मैंने ऐसे ही कह दिया था स्कूल बनाएंगे तो आओगे, स्कूल तो मुझे बनाना था नहीं। तो मैं एम्बेरेस्ड थी इस बात पर दैट हैड नो मीनिंग फॉर मी, बट दैट बॉय वाज आस्किंग फॉर दैट। बट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। लेकिन ऐसे वादे जहाँ तहाँ मिलते हैं। अर्थहीन प्रोमिस, मीनिंगलेस प्रोमिसेज आर मेड ऑल अराउंड अस। सो एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। उसकी दुनिया में, उसकी काली दुनिया जो है, अंधेरी दुनिया, उसमें हर जगह ऐसे वादे मिलते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम। कई महीनों तक जान पहचान होने के बाद एक दिन मैंने उससे नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेज। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब आलम का मतलब होता है दुनिया का मालिक। सो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसको अपने नाम का मीनिंग भी फेथ करने में टाइम लगा, बिलीव करने में। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स एंड army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon over the months. I have come to recognize each of them. वह अपने नाम का अर्थ जाने बगैर अपना घूमता रहता था, पीठ पर बोरा लाद करके, और दिन भर रैग वगैरह चुनता रहता था। उस प्रकार के वह उस तरह के उस बहुत सारे बच्चे थे उसकी टीम में। धीरे धीरे मैंने उनमें से बहुतों को पहचान लिया था। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। चप्पल नहीं था, मैंने उसमें से एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। शेल्फ मतलब टाँड़, मैंने जूता चप्पल रखने वाली जगह। तो वो बोला कि मेरी माँ उसको टाँड़ पर से नीचे नहीं उतार देती है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर। एक दूसरा बच्चा बोला कि अगर मम्मी उतार करके देगी भी तब ये फेंक देगा क्योंकि पहनने की आदत नहीं है। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैंने बोला कि ऐसा क्यों करते हो तो अपना पैर घसीटता रहा, कुछ बोला नहीं। आई वांट शूज सेज ए थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। तीसरा बच्चा बोला कि उसे शू चाहिए जिसको कभी लाइफ में मिला नहीं था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट। जब मैं पूरे देश में घूमती हूँ तो मैंने देखा है बिना जूता चप्पल वाले बच्चों को। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज वन एक्सप्लानेशन। ये लोग हैबिचुएटेड हो जाते हैं गरीबी के कारण नंगे पाँव चलने के लिए। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लोग बोलते हैं कि नंगा चलना ठीक रहता है, लेकिन क्या इसका कुछ मतलब है? इसका मतलब तो यह है कि परपेचुअल मतलब कंटिन्यूड स्टेट ऑफ पॉवर्टी है। गरीबी कितनी लंबी परंपरा है कि वो लोग चाहकर भी इससे अलग नहीं हो पाते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। उडुपी से एक आदमी मिला था मुझे जिसने एक कहानी शेयर किया। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज ए प्राइस्ट। ठीक है, प्राइस्ट था उसका फादर, ओल्ड टेम्पल के बगल से गुजरता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वहाँ खड़ा होकर के बच्चा वो पूजा करता है, प्रेयर करता है भगवान से शू के लिए। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। आज वहाँ मंदिर के आसपास में कोई खास लोग नहीं है, शहर अलग विकसित हो गया है, वहाँ पर शांति है, वो कट गया है शहर से। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट। और न्यू प्राइस्ट वहाँ पर है जो रहता है पीछे मंदिर के। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म
wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. तो वह पंडित था, लेकिन पंडित की अगली पीढ़ी में जब पंडित वहाँ हो गया, उसका बेटा पढ़ रहा था कॉन्वेंट में, तो उसको तो शू हो गया था, लेकिन तब भी यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रैग पिकर हैं, उनको शू आज तक नसीब नहीं है. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी. सीमापुरी जो दिल्ली में एक शहर है, ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के किनारे पर है. 8 miles away from it, मेटाफरिकली दोज सीमापुरी, ये दिल्ली से बहुत दूर है तो दूर पर ही, लेकिन दिल्ली में ही सटा हुआ है. दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे इंडिया में. साहेब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम. साहेब्स फैमिली इज ऑल्सो वन ऑफ देम. सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस. सीमापुरी वहाँ पर एक क्या बोले उसको, वो ऐसा था मृग मरीचिका की तरह था, जिसको आप कहिए कि लोग देहात से शहर में आए थे, लेकिन वो शहर भी नहीं था, वो विल्डरनेस है, वो विकसित नहीं है. इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. वो खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन. वहाँ पर प्लास्टिक टिन का बना हुआ छत और कच्चे मकान बहुत मात्रा में मिलते हैं, मतलब वो गरीबी है वहाँ पर. डिवाइड ऑफ सीवेज. नाली की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, सफाई नहीं है, और रनिंग वाटर, पानी बहता रहता है. लिव 10,000 रैग पिकर्स. वहाँ 10,000 ये कचरा चुनने वाले लोग रहते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. और उनके पास में वोटर कार्ड तो है, राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूड. विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विथ राशन कार्ड में है उनके पास, और कुछ नहीं है. ठीक है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन. कभी कभी पेट वगैरह में दर्द रहता है तो हम लोग यहाँ लेट जाते हैं बगल में फील्ड में. लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, लेकिन उससे भोजन नहीं मिलता उस दिन. से ए ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. वे लोग अपना पुराना मकान कहाँ, वहाँ जो बांग्लादेश में था, ग्रीन फील्ड और रिवर्स से भरा हुआ, उसको छोड़ करके यहाँ पर क्यों आ गए. तो महिलाएं बोली, wherever they find food they pitch their tents that become transit big homes. जहाँ भी खाना मिलने की गुंजाइश होती है वहाँ वो लोग अपना मकान बना लेते हैं, ट्रांजिट होम्स, वो क्षणभंगुर मकान, टेंट्स. तो टेंट वगैरह खड़ा करके वे लोग रहते हैं. मतलब क्या हुआ, ये घुमक्कड़ हुए, जिप्सीज जैसे लोग हुए. चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम. बच्चे उसमें बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वे लोग भी सर्वाइव करना सीख जाते हैं गरीबी में. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. और वहाँ जिंदा रहने का मतलब है, सर्वाइव करना मतलब रैग पिकर हो जाना है. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. उनके लिए गार्बेज क्या है, गोल्ड है. ये आपको ये हाइपरबोल है. ये गार्बेज, कचरा को सोना बनाया, मतलब गार्बेज का कीमत उनके लिए कितना है इम्पोर्टेंट, वही काम है, तो वो गोल्ड की तरह है. इसको बोलते हैं हाइपरबोल. हाइपरबोल क्या है, लिटरेरी डिवाइस है, ये अलंकार है. तो गार्बेज को सोना कह के बताया, मतलब छोटी चीज़ को बड़ा कह के बताना, ये हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन होता है. दैट इज़ कॉल्ड लिटरेरी डिवाइस. लिटरेरी डिवाइस पर भी एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा अलग से बहुत जल्दी, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए
आगे बढ़ेंगे हम लोग, और बहुत जल्दी, वेरी सून आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो ऑन इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीचेज. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. एक छत हो, भले ही चूती हुई छत क्यों नहीं हो, तो भी चलेगा बच्चों के लिए, क्योंकि बिना छत के तो घर हो ही नहीं सकता है. जैसा भी हो, जो भी हो, छत तो एक है ही. तो घर चाहिए, और घर उनका क्या है, वही टूटा फूटा. आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट. साहेब बोला, कभी कभी हमें पैसा मिलता है, कभी कभी तो 10 रुपया मिल जाता है, 10 टकिया. हिज आइज लाइटिंग अप when you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope of finding more. जब एक मिल जाता है सिल्वर कॉइन, तो आप अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाते हैं और खोजने का प्रयास करते हैं. For there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. पेरेंट्स के गार्बेज का मीनिंग बच्चों के लिए अलग है. फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर. वो बच्चों के लिए वो आश्चर्य की वस्तु है गार्बेज, उसमें कभी कभी सिक्का वगैरह मिल जाता है इसके लिए. फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल. और बड़े लोगों के लिए जीने का साधन है. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. नेबरहुड क्लब के गेट पर जहाँ चारदीवारी थी, वहाँ पर मैंने एक दिन साहब को देखा. वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस. वहाँ पर वो खड़ा होकर के 2 लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था. आई लाइक द गेम ही हम. सो बोला, बुदबुदाया, गेम उसे पसंद है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. इसलिए वो बाहर से देख करके ही संतुष्ट हो रहा था. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. जो भीतर स्विंग है, झूला है, वो मुझे गेट कीपर उस पर बैठने देता है. साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. समवन गेव देम टू मी, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. वह जो शू पहने हुए था, वो किसी बड़े आदमी के बच्चे का था, जिसमें छेद हो गया था, जिससे बच्चा पहनना छोड़ दिया होगा और इसको मिल गया. डज नॉट बोदर हिम. लेकिन इसके लिए छेद है जूता में तो क्या है, शू ही है. फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट. बेयर फुट मतलब नंगे पाँव घूमने वाले व्यक्ति के लिए एक छेद वाला शू भी मिल जाए तो बहुत है. इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू. दैट शू विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू. जैसे सपना साकार हो गया हो, ड्रीम कम ट्रू. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. बट द गेम विच ही वॉज वॉचिंग दैट वॉज आउट ऑफ हिज रीच, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू प्ले. दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. मिल्क बूथ पर मैंने उस दिन देखा उसको. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. कैनिस्टर मीन्स डब्बा. उसके हाथ में स्टील का डब्बा था. आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड. अब उसने बताया कि वो चाय की दुकान में काम करता है. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स. यस, he said that he gets there 800 rupees and his meals. Does he like the job? मैंने उससे पूछा, do you like your job? I asked. His face I see has lost the carefree look. वो टेंशन में पड़ गया, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा था, वह केयर फ्री नहीं रहा, क्योंकि उसको लगा कि जॉब तो अच्छा नहीं है, वहाँ उसकी गुलामी है. लेकिन वो क्या कर सकता था, इसलिए जब बात पूछी गई, डू यू लाइक योर जॉब, ही लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. जब वो कचरा बिनता था, उस समय जो बैग होता था पीठ पर, उससे मुझे वो ज़्यादा भारी मालूम पड़ा. कौन? डब्बा. क्योंकि डब्बे में उसको आज़ादी नहीं थी, वह मालिक नहीं था, उसको मालिक के अंदर काम करना पड़ता था. ओवर हिज शोल्डर द बैग वॉज हिज. बैग उसका हुआ करता था. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन who owns the tea shop. साहेब is no longer his own master. अब साहेब अपनी मर्जी का मालिक नहीं था. I want to drive a car. उसने मुझे बताया कि वो कार चलाना चाहता है. मुकेश insist on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. वो बोला कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है.
डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? अब ये कहानी किसके विषय में है? अनदर बॉय, दैट इज मुकेश। पहली कहानी हम लोगों ने पढ़ा साहिब के विषय में। साहिब कौन था? फुल नेम उसका साहिब आलम। ही वॉज ए रैग पिकर। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी ऑफ मुकेश, अदर एग्जाम्पल ऑफ ए पुअर चाइल्ड। तो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता है। सो ही वांट्स टू लर्न ड्राइविंग। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही अनाउंसेज। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? मैंने उससे पूछा, जानते हो कार के विषय में कुछ? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। हिज ड्रीम लुक्स लाइक ए मिराज। मिराज मतलब विमान, बहुत बड़ा साइज में। एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। कार कार के विषय में जब मैंने उससे पूछा तो वो ऐसा उसका भाव हुआ जैसे लगा कि डस्ट में आदमी को मिराज की बात हो रही है। डस्ट ऑफ स्ट्रीट में पड़ा आदमी अगर उसको मिराज का सपना दिखाया जाए, किसी नाचीज़ को बहुत बड़ा ख्वाब दिखा दें तो जो फीलिंग होगा वैसा ही फीलिंग था। मिराज उसको लाइक ए मिराज एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। ये कहानी आपको फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद क्या है? बैंगल ग्लास के लिए मशहूर है। ठीक, तो फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. वहाँ के सारे लोग, फिरोजाबाद जो शहर है, वहाँ के सारे लोग प्रायः जो भी गरीब आदमी है, सब आदमी ग्लास का वेल्डिंग करता है और भट्टियों में बैठा रहता है जहाँ शीशा गलाया जाता है, शीशा का काम होता है और चूड़ियाँ बनती है। वहाँ पीढ़ियों से लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो कई पीढ़ियों से ये चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम। मुकेश का फैमिली भी उसी में से है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज विथ हाई टेम्परेचर। वो ये इलीगल है, ये मुकेश जैसे बच्चों को पता नहीं है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड टाइट दैट लाइट दैट द law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. वहाँ से 20,000 बच्चे मुक्त हो सकते हैं अगर सरकारी कानून जो बाल मजदूरी के खिलाफ है, if that is implemented, then 20,000 children would be made free from there. मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश मुझे अपने घर ले गया। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड। घर बन रहा है उसका, वो बोला था गर्व से। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज। हम लोग गए वहाँ पर स्टिंकिंग लेन से होते हुए, गार्बेज चोक्ड विथ गार्बेज जहाँ तहाँ फेंका था। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वाल्स। वहाँ कमज़ोर दीवारें थी हिलती डुलती। वोबली डोर्स, no windows, crowded with families of humans and animals coexistence in a primeval state. जानवर इंसान दोनों एक साथ ही रहते थे, जैसे कि प्राइमेवल स्टेट में पहुंच गए हों हम लोग प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We entered a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves on the ground. In large aluminium platters are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. उसमें एक महिला खाना बना रही थी। वहाँ पालक की साग बन रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक एंड सी स्माइल्स। वहाँ का वर्णन है, धुआं है और उसमें भी वो मुस्कुरा रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच एल्डर इन ईयर्स. शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men.
husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughters-in-law must veil मतलब घूंघट, their faces, पर्दा में रहती है बहुएं, faces before male elders, मेल एल्डर घर में आते हैं तो ये जो घर की बहू होती है वो पर्दा कर लेती है, घूंघट निकाल लेती है। ये मुकेश के घर का सीन है, उसकी भाभी है तो उसके पिताजी भी वहाँ पर रहते हैं, तो दैट इज़ द थीम। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. वो जो बूढ़ा आदमी है वो वृद्ध है और वो अभी बैंगल मेकर ही था, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। फर्स्ट एज ए टेलर मास्टर, पहले वो टेलर मास्टर था, एंड उसके बाद वो इतना मेहनत किया, देन ए बैंगल मेकर बन गया। ही हैज़ फेल टू रिनोवेट ए हाउस एंड हीज 2 सन्स टू स्कूल। वह घर बनाने के लिए इतना श्रम किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अंत में उसके बेटे भी बैंगल मेकर बन गए। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी बोली कि उसका भाग्य है, डेस्टिनी है, कर्म है। हु हैज़ watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। ग्लास ऑफ बैंगल्स में काम करते करते उसके डस्ट से वह अंधा हो गया था उसका हस्बैंड। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। वो लेडी बोली कि जो भगवान का दिया हुआ है वो नहीं बदला जा सकता है। शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। बैंगल के खानदान, बैंगल मेकर के खानदान में जन्म लेने के चलते बैंगल मेकिंग के अलावा और कुछ उन्होंने देखा नहीं है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color, born out of the 7 colors of the rainbow। ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनती हैं फिरोजाबाद के हर गली में, हर शहर में। lie in mounds in unkempt yards are piled on 4-wheeled hand carts। ये 4 पहिया वाला हैंड कार्ट्स होता है जिस पर लादा रहता है, लाद के चूड़ी बेची जाती है, बनने वाली मशीन भी होती है। pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town and in dark hutments। अंधेरी झोपड़ियों में डार्क हटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के ऊपर दिया गया है डार्क हटमेंट, ठीक है, तो ये डार्क हटमेंट। नेक्स्ट 2 लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ वाइल लैम्प्स। वहाँ वाइल लैम्प के प्रकाश में काम होता है चूड़ी बनाने का। स्वीट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स welding pieces of colored glass into circles of bangles। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outhouse। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। एडल्ट होने के पहले ही वे लोग अपना आई साइट गंवा देते हैं, बहुत सारे बच्चे जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। सविता यंग गर्ल इन ए ड्राई पिंक ड्रेस। और मुकेश की कहानी समाप्त होती है। आफ्टर दैट नरेटर इज टेलिंग अस द स्टोरी ऑफ सविता। सविता कौन है? तो ही सी इज अ यंग गर्ल इन ए ड्राइव मतलब बादामी पिंक ड्रेस, गुलाबी कपड़ा पहनी हुई है। सिट्स अलॉन्ग साइड एंड एल्डरली वीमेन सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। एल्डरली वुमेन के बगल में बैठी है और वह जो काम कर रही है, सोल्डिंग कर रही है पीसेज ऑफ ग्लास का। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। वह
जैसे टोंग मशीन का टोंग काम करता है, उसके हाथ उसी तेज़ी से काम कर रहे हैं। मतलब शी वॉज हैबिचुएटेड। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। जो चूड़ियों की पवित्रता है वो जानती है कि नहीं, मुझे आश्चर्य हुआ। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेंस सुहाग। भारतीय महिलाओं के सुहाग का यह प्रतीक है। ऑस्पिशियस शुभ होता है ये इन मैरिज, शादी के अवसर पर। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड वेल। एक दिन उसकी बाहों में चूड़ियाँ होंगी जब उसके माथे पर लाल घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना। हाथों में मेहंदी लगी हुईगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। उसकी कलाइयों में भी चूड़ियाँ होंगी ये लाल लाल। शी विल देन बिकम ए ब्राइड। तब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वीमेन बिसाइड हर who became one many years ago, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes. उसके बगल में जो लेडी है वो उम्रदराज महिला है, उसकी बाहों में, उसकी कलाई में चूड़ियाँ है आज भी, लेकिन उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। भर पेट माने खाना भी नहीं मिला था उसको, बोली। She says in a voice drained of joy, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. वहाँ जो बूढ़ा आदमी था वो बोला कि मैंने घर में अपने लाइफ में एक छत बना लिया, घर बनाया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मतलब ये इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स इज रियली वेरी बैड, सो दैट इज द मेन कंसर्न इन दिस पैराग्राफ्स। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड। उसने घर बना लिया, उसके लिए बड़ी बात थी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. The young men echo the lament of their elders. वहाँ यंग भी जो मेन हैं वो भी अपने बड़े बुजुर्गों की तरह ही आह भरते हैं, अपनी असफलता की कहानी सुनाते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम। समय के हिसाब से बहुत कम बदला है, कुछ नहीं बदला। इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव killed all initiative and the ability to dream. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने उससे पूछा कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं। कोऑपरेटिव मैंने मिलीजुली व्यवस्था करते हैं कुछ जीने के लिए। वो बोले कि नहीं, बीच में मिडिल मैन होते हैं जो बर्बाद कर देते हैं हम लोग का सारा प्लान। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। जैसे ही कोई लीडर बनेगा हमारा, मीटिंग होगी, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी उसको। बीटेन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल करने का आरोप लगा करके उसको ले जाएगी पुलिस पकड़ के। दे से देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम। उनका कोई नेता नहीं है। नो वन who could help them. She thinks differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. उनके लोग, सभी लोग ऐसे ही बात करते हैं जो पॉवर्टी से शुरू होकर के एपैथी पर आती है और ग्रीड से शुरू होकर के इनजस्टिस तक पहुंचता है। सो लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। मैंने वहाँ देखा, उनकी बात करके सुन करके लगा, देयर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स हियर। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी बर्डन। एक वो फैमिली है जो गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। और इसके अलावा जाति का धब्बा उन पर लगा है। द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स। और एक दूसरा भी है जो साहूकार लोग हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं। द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. इन सारी व्यवस्थाओं ने, इन लोगों ने मिल करके ऐसा बैग लाद दिया है बच्चे की पीठ पर जिसको हटा नहीं सकता है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। खुश होते होते उसको हैबिट हो जाता है, उसको हटाने से इनकार कर देता है, अपना भाग्य मान के स्वीकार कर लेता है।
To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. Daring ठीक नहीं है, दुस्साहस करना सही नहीं होता है, ये बच्चों को महसूस होने लगता है, अपने हालात से बाहर निकलने की कोशिश करना वे छोड़ देते हैं. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. जब मुकेश ने मुझे कहा था कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मुझे वो अच्छा मालूम पड़ा. He repeats, he will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. गैरेज उसके घर से दूर है. I will walk, he insists. वो पैदल ही जाएगा. Do you also dream of flying a plane? मैंने उससे पूछा, Do you like to flying a plane? He is suddenly silent. वो साइलेंट हो गया. नो, ही सेज, बोला कि नहीं. Staring at the ground, in his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of years that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. कुछ एरोप्लेन फिरोजाबाद शहर से उड़ते ज़रूर हैं, ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन वो बच्चा मुकेश वो मोटर मैकेनिक बनने से सेटिस्फाइड है. वो प्लेन फ्लाई करने का सपना नहीं पाल सका. मतलब सपने भी देखने की आज़ादी उसको नहीं थी. वो हैबिचुएटेड हो गया था अपने भविष्य को समर्पित करने के लिए. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन चाइल्डहुड. वी हैड रेड हियर one character Sahib Alam, Sahib, after that Mukesh, after that this girl, her name is Savita, or what is that? You will memorize yourself. Savita is a girl. And so ये कचरा बिनने वाले की कहानी, रैग पिकर्स, बैंगल मेकर्स, ये सब के हम लोगों ने देखा. In this chapter we had read about, and so the effect of poverty has been highlighted. So please सब्सक्राइब और इसके बाद वाला चैप्टर भी देखिए. मैं पढ़ाता रहूँगा. थैंक यू फॉर व्यूइंग. हैव ए नाइस डे.